કાર્યની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય છે, પણ એ બેય વસ્તુ છે. એક તો રુચિનું પોષણ જોઈ અને તત્વનું ઘૂંટણ જોઈ. તો રુચિનું પોષણ માટે શું કરવું? માતાજીને પ્રશ્ન પૂછેલો કે વચનામૃતમાં ઘણી બધી જગ્યાએ આપે લખેલું છે કે રુચિ અનુયાયી વીર્ય. તો રુચિનું જ મહત્ત્વ આપે બતાવ્યું છે, પણ કાર્ય થાય છે એ તો પુરુષાર્થથી થાય છે, રુચિથી નથી થતું. તો કાર્ય પુરુષાર્થથી થાય છે, તો પુરુષાર્થનું મહત્ત્વ તમે કેમ ન બતાવ્યું? તો માતાજી એમ કીધું કે રુચિ અનુયાયી વીર્ય. જ્યાં જેનો રસ હોય ત્યાં પુરુષાર્થ એની પાછળ ચાલે જ છે. એટલે જેની જ્યાં રુચિ હોય એનો પુરુષાર્થ ત્યાં ચાલે છે. આ મોબાઈલ જોવાની ઈચ્છા હોય, એ ગમતું હોય આપણને, તો એ શીખવા માટે, લેવા માટે વારંવાર આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ, કારણ કે એની રુચિ છે, એના પ્રત્યેનો લગાવ છે, એના પ્રત્યેનો ગમાનો ભાવ છે. એટલે એ કાર્ય અનાદિથી કાર્ય કર્યું છે. સૂત્ર પરિચિત અનુભૂત સર્વને કામ ભોગ બંધનની કથા. તો કે અનાદિકાળથી કામ ભોગ બંધની કથા જ જીવે કરી છે. તો કે એને સંસારની જ રુચિ છે. આપણે વિચાર કરી કે ઘરમાં સવારે ટીપાઈ ઉપર આત્મધર્મ પડ્યું હોય અને ગુજરાત સમાચાર પડ્યું હોય, તો વાંચવાની ઈચ્છા કોની થાય? પહેલાં તો કે ગુજરાત સમાચાર વાંચી. એમાં કારણ કે એના પ્રત્યેનો રસ છે, લગાવ છે, એના પ્રત્યેની રુચિ છે. ટીવી જોવાની ઈચ્છા થશે, સિરિયલ જોવાની, પિક્ચર જોવાની, કારણ કે એમાં પ્રત્યે ગમે છે. પણ 1 કલાક પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનું પ્રવચન સાંભળવું હોય તો આપણને જાણે બહુ બોજો આવી ગયો હોય અને ઘડિયાળ સામું 2-3 વાર જોઈ લે કે ક્યારે પૂરું થાય છે. એના પ્રત્યેનો લગાવ નથી, એની રુચિ નથી. એટલે અનાદિકાળથી આપણી સંસાર પ્રત્યેની જ રુચિ છે. તો રુચિ વધારવા માટે શું કરવું? માતાજીએ કીધું કે ભાઈ રુચિ અનુયાયી વીર્ય. તો જવાબ આપ્યો કે રુચિને અનુસાર પુરુષાર્થ ચાલે છે. હવે રુચિને અનુસાર પુરુષાર્થ ચાલે છે, તો રુચિ વધારવા માટે શું કરવું? હાલો રુચિ વધારી, પણ રુચિ વધારવા માટે કરવું શું? તો કે પુરુષાર્થ કરવો. રુચિ વધારવા માટે પુરુષાર્થ કરવો. પુરુષાર્થ શું છે? તો કે આત્માની સમજણ છે, તત્વનો અભ્યાસ છે, શુદ્ધાત્માનો વિચાર છે, એ પ્રાપ્ત કરવાની ભાવના છે. તો કે એ પુરુષાર્થ છે. પુરુષાર્થ બીજો કોઈ કરવાનો નથી. અનાદિકાળથી આપણે જે આત્માનું સ્વરૂપ છે, જે વિપરીત સ્વરૂપે આપણે માન્યું છે, એને યથાર્થ આત્મ સ્વરૂપે માની, જેવો સ્વભાવ છે એવા રૂપે માનીએ તો અવશ્યપણે એ સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય જ. તો આત્મામાં અનંત ગુણ છે, અનંત શક્તિ છે, અનંત સામર્થ્ય છે, એનો આપણને વિશ્વાસ નથી. અને એટલા માટે એની રુચિ નથી. રુચિ શું કામ નથી? કે એની જરૂરિયાત નથી, એનું મહત્ત્વ નથી, એનું મહત્ત્વય નથી. એનું મહત્ત્વ જેને મહત્ત્વ હોય એનો રસ અહીંયા ચાલ્યો જાય છે. એ સામાન્ય દૃષ્ટાંત આવે છે કે કોઈ વેપારી હોય અને એ પેઢી ઉપર બેઠો હોય, તો એના ટેબલ ઉપર પેપરવેટ, કાચનો ટુકડો પેપરવેટ તરીકે મૂક્યો હોય. એ વર્ષોથી પેપરવેટ તરીકે કાચના ટુકડાનો ઉપયોગ કરતો હોય અને ઘણા વર્ષો પછી એના મિત્ર કોઈ ઝવેરી હોય, એ આવે અને કહે કે ભાઈ આ તો રત્ન છે, સાચું રત્ન છે, આ કાચનો ટુકડો નથી, આ રત્ન છે. વેપારીને ખબર નહોતી, પણ હવે એને ખબર પડી કે આ કાચ નથી, આ તો રત્ન છે. પછી પેપરવેટ તરીકે એનો ઉપયોગ કરશે? નહીં કરે. એનું મહાત્મ્ય વધી જશે. કારણ કે જ્યાં સુધી એની ખબર નથી ત્યાં સુધી એનું મહાત્મ્ય નથી. એની જ્યારે ખબર પડે છે,
વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ જ્યારે આવે છે ત્યારે એનું મહાત્મ્ય આવ્યા વગર રહેતું નથી. તો આપણને આપણો શુદ્ધાત્મા છે. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ 45 વર્ષ સુધી આ ભવ્ય જીવોને માટે આત્મહિતનો ઉપદેશ આપ્યો. 45 વર્ષ સુધી વિચાર કરો કે આ કાળમાં ગુરુદેવ જેવા ધર્માત્માની પ્રાપ્તિ થવી એ કોઈ મહાન જેને ભાગ્યનો ઉદય હોય તેને પ્રાપ્ત થાય છે. ઘણા વર્ષો પહેલાં ગુરુદેવની હાજરીમાં એકવાર ગુરુદેવના કોઈ પ્રવચનોનું પ્રકાશન થતું હતું પુસ્તકનું. એ પુસ્તકની પ્રસ્તાવનામાં એવું લખેલું હતું કે પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી કાનજી સ્વામી એ યુગ પુરુષ છે એવું કીધું. એમાં લખેલું એવું પ્રસ્તાવનામાં કે પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી કાનજી સ્વામી યુગ પુરુષ છે. એટલે ગુરુદેવના ધ્યાનમાં આવ્યું. ગુરુદેવે વિવેકથી કીધું કે સાહેબ મને આટલું બધું માન ન આપો. વિનયપૂર્વક ગુરુદેવે કીધું. થોડાક દિવસો પછી પંડિત લાલનજી આવ્યા અને એને આ વાત થઈ કે પંડિત લાલનજીએ શું કીધું કે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી યુગ પુરુષ નથી, અધ્યાત્મ યુગ સ્રષ્ટા છે. આ યુગનું સર્જન, અધ્યાત્મ યુગનું સર્જન કરનાર છે. કે અનાદિકાળથી જે ધર્મનું સ્વરૂપ લુપ્ત હતું, આખા જગત વિપરીત રૂપે ધર્મને માનતો હતો, તો કે એ સાચા સ્વરૂપને બહાર લાવનાર આ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી. એટલે એ અધ્યાત્મ યુગ સ્રષ્ટા છે. યુગ પુરુષ તો એના માટે ઓછું છે, એનું કહેવાનું એમ હતું. તો આપણને આપણો જે આત્મા છે, નિજ આત્મા છે, અનાદિકાળથી નિજ આત્માનો વિશ્વાસ નથી, એનો ભરોસો નથી. ગુરુદેવ આપણને પરમાત્મા કહીને બોલાવે છે કે તું પરમાત્મા છો એવો નિર્ણય કર, એવો નિશ્ચય કર. પણ આપણને પરમાત્મા જેવું લાગતું નથી. આપણને ક્યારેય એવું લાગતું નથી કે હું પરમાત્મા છું. આપણને એવું લાગે કે હું પામર છું, મનુષ્ય છું, પુરુષ છું, સ્ત્રી છું, ગરીબ છું, પૈસાવાળો છું, બુદ્ધિવાળો છું. પણ હું પરમાત્મા છું એવું આપણને ક્યારેય લાગતું નથી. પણ હકીકતે આપણો આત્મા છે એ પરમાત્મા સ્વરૂપ જ છે. નિયમસારની ગાથામાં, હિન્દી ચાલશે, હિન્દી ગુજરાતી ચાલશે. નિયમસારની 47મી ગાથામાં आचार्य देवे, नियमसार की जो 47 नंबर की गाथा है उसमें कुंद आचार्य देव ने एक गाथा जो लिखी है उसमें मुकी है. उसमें ऐसा बताया है कि संसार के जीव और सिद्ध भगवान में मुझे कोई फर्क नहीं दिखाई देता. कुंद आचार्य देव ऐसा कहता है कि निगोद का जीव हो, एकेंद्रीय निगोद का जीव, एक आलू की कटकी में असंख्य शरीर और एक शरीर में अनंता जीव. तो कि ऐसा छोटे में छोटा निगोद का जीव है, उसमें और सिद्ध भगवान में मुझे कोई फर्क दिखाई नहीं देता. जैसा सिद्ध भगवान का स्वभाव है वैसा ही निगोद का जीव का स्वभाव है. जैसा सिद्ध भगवान में सामर्थ्य है, जितना गुण है इतना ही गुण निगोद के जीव में एक भी कम नहीं है. उतना ही गुण निगोद के जीव में है. मात्र वर्तमान एक समय की अवस्था में जो फर्क है इतना ही फर्क है. स्वभाव से देखा जाए, सामर्थ्य से देखा जाए, परमात्मा स्वरूप से देखा जाए तो परमात्मा सभी जीवों परमात्मा ही है. जैसा सिद्ध भगवान है वैसा ही सभी संसार का जीव है. तो हमारा आत्मा का हमें महिमा नहीं आता है. हमें आत्मा परमात्मा स्वभाव है तो कि कब है, जब सिद्ध दशा होती है तब परमात्मा होता है. अब तो नहीं है ना. तो कि नहीं, वर्तमान में ही भी हम परमात्मा ही है. एक समय की वर्तमान अवस्था में जो भी मलिनता है वो आत्मा का विभाव भाव है, स्वभाव भाव नहीं है. और पर द्रव्य के संग से थયેલો आत्मा का विकारी भाव है, वो आत्मा का स्वभाव भाव नहीं है. और ये विकारी भाव है वो चला जाता है, आत्मा में से निकल जाता है, वो शाश्वत नहीं रहता. जैसे पानी होता है तो
तो पानी गैस पर हम गैस को जलाकर पानी रखते हैं उसमें जो वासन में, तो पानी उष्ण हो जाता है। पानी उष्ण हो जाता है तो उसमें हम हाथ डालते हैं तो भी जल जाते हैं हाथ, ऐसा होता है, इतना उष्ण है। लेकिन पानी जब उष्ण हुआ उसी समय, ये पानी का शीतल स्वभाव उसी समय है या इसमें उसी समय निकल गया है? तो कि है, उसी समय भी है। भले पानी उष्ण है, उसी समय भी आत्मा का शीतल स्वभाव नहीं है, क्योंकि शीतलता है वह स्वभाव है और उष्णता है विभाव है। पानी गैस से नीचे रख दे तो 5-15 मिनट में पानी शीतल हो जाता है, उष्णता चली जाती है। क्यों? उसका स्वभाव भाव नहीं है, और शीतलता है वो स्वभाव भाव है। तो आत्मा का ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य आत्मा का स्वभाव भाव है, वो आत्मा में है, आत्मा में से कभी निकलता ही नहीं है। और राग, द्वेष, मोह आदि जो विभाव भाव है वो आत्मा का विकारी भाव है, वो आत्मा में से निकल जाता है, हो सकता है, निकल जा सकता है। तो ये हमारा स्वरूप नहीं है। तो आत्मा का महिमा करने के लिए हमें क्या करना? गुरुदेव ने पूछा कि भाई आप परमात्मा स्वरूप हमको कहते हैं कि बधा जीव परमात्मा ही है, सब शिव, संसार का सभी जीव परमात्मा है, तो हमें परमात्मा है इसकी ओळखाण हम कैसे करें? हमें आत्मा का महिमा कैसे आए कि भाई हम परमात्मा है, ऐसा महिमा कैसे आए? तो उसका हम विचार करें तो हो सकता है, क्योंकि ज्ञान गुण है हमारा, एकमात्र साधन है आत्मा का महिमा करने का, आत्मा की ओळखाण करने का, उसकी पहचान करने का, स्वपर का भेद विज्ञान करने का और आत्मा की प्राप्ति करना। और सभी ज्ञान से ही होता है, वो ज्ञान से ही सभी कार्य होता है। तो ज्ञान हमारा गुण है, तो उससे आत्मा की महिमा आ सकती है। जैसे हम विचारें, आत्मा में तो अनंत गुण है, 3 काल के समय से भी आकाश का प्रदेश अनंत गुना है, और अनंत आकाश के प्रदेश से भी आत्मा में अनंत गुना गुण है। तो आत्मा में परिपूर्ण सामर्थ्य भरा पूरा हुआ है, लेकिन उसका हमें विश्वास नहीं है, उसका महिमा नहीं है, क्योंकि उसी तरफ हमें कभी देखा नहीं है। ये समय सार में 23 नंबर के श्लोक में आते हैं कि कथमपि मुत्वा तत्व कौतूहली सन, कि ये जीव ने कभी भी अनादिकाल से आज तक अपना आत्मा परमात्मा स्वरूप है उसे देखने की उसको जिज्ञासा नहीं हुई है। अनादिकाल से एक बार भी ऐसी जिज्ञासा नहीं हुई है कि मेरा आत्मा परमात्मा है, मैं परमात्मा हूँ। मुझे भगवान परमात्मा कैसे, आचार्य देव परमात्मा कहते हैं, गुरुदेव परमात्मा कहते हैं, तो एक बार मैं देखूँ तो खरा कि भाई मैं परमात्मा हूँ या नहीं हूँ, वो देखने की जिज्ञासा नहीं हुई है। अमेरिका देखने की जिज्ञासा होती है, ताजमहल देखने की जिज्ञासा होती है, लेकिन हमारा परमात्मा स्वभाव है वो देखने की हमें जिज्ञासा नहीं होती है। ऐसा अनादिकाल से आज तक हुआ नहीं है। तो आत्मा का अनंत गुण है और प्रत्येक गुण का अमर्यादित सामर्थ्य है। प्रत्येक गुण का आत्मा में अनंत गुण है और प्रत्येक गुण का अमर्यादित सामर्थ्य है। जैसे हम ज्ञान गुण देखें तो आत्मा का ज्ञान असाधारण गुण है। तो आत्मा में ज्ञान गुण की शक्ति कितनी है, केवल ज्ञान की शक्ति कितनी है? तो कि विचार करें, हमारा ज्ञान वर्तमान में मतिस्मृत ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, हमें ज्ञान का इतना उगाड़ नहीं हुआ है, लेकिन सामर्थ्य अपेक्षा तो केवल ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। तो केवल ज्ञान की ताकत कितनी है? तो देखो, एक केवल ज्ञान का एक समय में सर्वज्ञ भगवान अपने केवल ज्ञान में एक समय में तीनों काल का सभी द्रव्यों की तीनों प्रकार की अवस्था देखते हैं। जगत में जीव अनंत है, पुद्गल उससे भी अनंत अनंत गुना है, असंख्यात काल द्रव्य है, और धर्म अधर्म आकाश एक एक द्रव्य है। तो आ जगत में अनंता द्रव्य है, सभी 6 द्रव्य अनंता है मिलकर। तो अनंता द्रव्य की वर्तमान की अवस्था
उसकी भूतकाल की अनंती पर्याय होती है भूतकाल की, क्योंकि जीव अनादि का है ना, ये क्षय द्रव्य अनादि का है। तो उसकी भूतकाल की अनंती पर्याय, वर्तमान पर्याय और भविष्य काल की होने वाली अनंती पर्याय, वो भगवान केवल ज्ञान में एक समय में भगवान जानता है। विचार करो, एक જ समय में, एक सेकंड में असंख्य समय चला जाता है। एक समय में सभी द्रव्यों की तीनों काल की अवस्था ये आत्मा केवल ज्ञान में दिखाई देती है, जान लेता है। ऐसा ज्ञान का स्वरूप है। लेकिन हमारा ज्ञान का हमें विश्वास नहीं है। हमारा आत्मा का सुख गुण है। तो विचार करें कि वर्तमान में हमें जो सुख है वो सांसारिक सुख है, वास्तविक सुख नहीं है, इंद्रियजन्य सुख है। लेकिन आत्मा का अतीन्द्रिय सुख कैसा है? तो कि भाई हमें तो सुख देखा नहीं है, तो हम उसका विश्वास कैसे करें? तो कि भाई उसका विश्वास हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। जैसे सम्यक दृष्टि जीव होता है, अनादि मिथ्या दृष्टि है। जब उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो उसको निसंक, निकांक्ष आदि 8 गुणों की प्रकटता होती है। वो 8 गुणों में दूसरा निकांक्ष गुण की प्राप्ति होती है। तो निकांक्ष गुण का कार्य किया है कि जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और आत्मा का अतीन्द्रिय सुख का जिसको आनंद आया, उसका आह्लाद आया, जिसको सम्यक दर्शन होता है उसी समय आत्मा का अनंत अनंत शक्ति सामर्थ्य का उसको आस्वाद आता है, आत्मा का सुख गुण का आस्वाद आते हैं। और उसको जो सुख लगता है कि वो अनादि काल से जिन्हें मैंने सुख माना था वो तो विष्टा जैसा है, अनंत सच्चा सुख तो मेरे आत्मे में है। तो जिस बार उसको आत्मा का जैसे ही अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है उसी समय से संसार के कोई भी प्रकार का भोग की इच्छा नहीं हो, चाहे चक्रवर्ती हो, भोग भूमि हो, स्वर्ग का देह हो या अहम इंद्र का सुख हो। संसार में अहम इंद्र का सुख सबसे ज़्यादा कहने में आता है। तो जो अहम इंद्र का सुख है उसकी भी आकांक्षा, उसकी इच्छा और सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होती है। क्यों? कि आत्मा में अनंत शक्ति, अनंत सामर्थ्य जो है उसमें आत्मा का सुख गुण का जो आस्वाद आया तो उसमें संसार का सभी पदार्थ तो तुच्छ लगता है, उसमें कहीं भी उसकी इच्छा नहीं होती है। दूसरी बात हम करें कि 16 में शांतिनाथ, 17 में कुंतुनाथ और 18 में अर्णनाथ भगवान, वो 3 पदवी के धारक थे। चक्रवर्ती थे, कामदेव थे और तीर्थंकर भी थे। तो शांतिनाथ भगवान, उसकी जन्म जयंती की उजवनी हो रही थी और पूरा राज्य में श्रृंगार हुआ था और पूरा राज्य में शरणाई बजती थी, पूरा उल्लास, एकदम उल्लास पूरे शहर में ये भगवान का जन्म दिवस की उजवनी मना रही थी। उसी समय शांतिनाथ भगवान आभूषण वस्त्र पहनकर वो दर्पण में देखता है तो उसको मुनि दशा का सुख का ख्याल आता है और चक्रवर्ती का सुख दोनों दिखाई देता है कि चक्रवर्ती का सुख है और ये मुनि दशा का सुख है। ये मुनि दशा का जो अतीन्द्रिय सुख है वो कैसा है? वो विचार करो कि जब उसको शांतिनाथ भगवान को जाति स्मरण में आत्मा का अतीन्द्रिय सुख का स्वाद आया तो शांतिनाथ भगवान 96,000 रानी, अप्सरा जैसी रानी होती है, 96 करोड़ गांव, 84,000 ये शहर, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर, ऐसा 84,000 शहर का जो अधिपति है वो चक्रवर्ती विचार करे कि वस्त्र आभूषण पहन कर दिखने आया तो मैं कैसा लगता हूँ, लेकिन जब उसको जाति स्मरण हुआ और उसका आत्मा का अतीन्द्रिय सुख का उसको स्वाद का अनुभव हुआ कि भाई ये सुख सच्चा सुख है, उसी समय के वस्त्र आभूषण सब निकाल कर वन जंगल में चले जाते हैं। विचार करो कि
जो 6 खंड का अधिपति होता है ना, 96,000 अप्सरा जैसी रानी होती है, और 6 महीने पहले तो उसका आहार की और तैयारी होती है, और 84,000 से 6 खंड का अधिपति, उसको कोई कमी नहीं है, संसार का कोई सुख की कमी नहीं है। वो शांतिनाथ भगवान उसी समय सब आभूषण वस्त्र राज्य छोड़कर चला जाता है वन जंगल में। तो विचार करो कि आत्मा का अतीन्द्रिय सुख का उसको महिमा कैसा आया होगा। हमारा शरीर में से बाहर निकलते और 500 रुपया की नोट गिर जाती है, और बाहर निकलने के बाद ख्याल आता है कि 500 रुपया की नोट हमें गिर गई है, तो 3 बार हम देखने आते हैं कि भाई कहाँ है, हम देखें तो खड़ा कि भाई नोट है कि नहीं। तो पूरा चक्रवर्ती पद जिसने छोड़ दिया है, तो कि ऐसा आत्मा का अतीन्द्रिय सुख का उसको आस्वाद कैसा आया होगा, कैसा अद्भुत लगा होगा, कैसा अतिशय लगा हुआ कि ऐसा आत्मा का अतीन्द्रिय सुख है। तो आत्मा का सुख गुण भी ऐसा है, आत्मा का वीर्य गुण है, सामर्थ्य है, पुरुषार्थ है, वो भी अमर्यादित सामर्थ्य वाला है। विचार करो, जैसे यशोधर मुनिराज के गले पे ये सैनिक राजा ने ये मरा हुआ सर्प उसके गले में डाला, क्योंकि वो बहुत धर्मी था और चेलना रानी जैन धर्मी थी। तो उसने मरा हुआ सर्प मुनिराज के गले में डाला। वो घर वापस आता है, वापस आकर वो उसकी पत्नी को बात करते हैं कि भाई मैं तेरा गुरु नग्न गुरु था, उसके गले पे मरा हुआ सर्प डाला है, लेकिन वो तो चला गया होगा। तो चेलना रानी ने बोला कि नहीं, हमारा गुरु है, वो जो भी उपसर्ग परिसर आए उसमें वो अचल रहते हैं, चला नहीं जाते हैं, वो वहाँ ही होगा। आपने बहुत गलत किया, उसके साथ जाता है, ले जाता है। और मुनिराज के सामने पहले उसका मरा हुआ सर्प निकाल कर पूरे शरीर में ये लाल चीटी उसके शरीर में वो थी और लाल लाल शरीर हो गया था। वो सामने बैठते हैं यशोधर मुनिराज के सामने। मुनिराज का उपयोग बाहर आता है, तब सैनिक राजा प्रायश्चित करते हैं, वो अपने भूल का इकरार करते हैं, अपने दोष का स्वीकार करते हैं, उसका दोष की सज़ा उसको सुनाने के बाद आग्रह करता है। और उसी समय मुनिराज ने उपदेश दिया। तो विचार करो कि वो मुनिराज के उपदेश से, यशोधर मुनिराज के उपदेश के कारण ये सैनिक राजा को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। विचार करो कि 2-3 घंटे पहले जिसके शरीर में मरा हुआ सर्प डाला, तो जिसके फल में उसको आयुष्य का बंध किया हुआ, 7वीं नरक के आयुष्य का बंध हुआ। विचार करो, मुनिराज का अपमान किया ना, उसका अविवेक किया, उसका उपसर्ग किया, उसके फल में 7वीं नरक का आयुष्य का बंध हुआ। और 2-4 घंटे के बाद वही मुनिराज के उपदेश से वो सैनिक राजा को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तो ये वीर्य गुण की ताकत है ना, पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ की ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है। विचार करो, भरत चक्रवर्ती के 100 पुत्र नित्य निगोद में से बाहर आता है, नित्य निगोद में से, इतर निगोद में से नहीं, नित्य निगोद में से, जो अनादिकाल से निगोद में है, अनादिकाल से कभी भी 2 इंद्रिय पना उसने प्राप्त नहीं किया है। तो कि अनादि एकेंद्रीय जीव, निगोद का जीव, ये नित्य निगोद का जीव 6 महीने 8 समय में 608 जीव बाहर निकलते हैं। तो उसमें ये भरत चक्रवर्ती के 100 पुत्र नित्य निगोद में से बाहर निकलते हैं, और वहाँ से निकलकर ये ममोला का अवतार उसको प्राप्त होता है। 2-3 इंद्रिय वाला होगा कोई, वो ममोला का जीव होता है, उसका आयुष्य पूरा कर वो मनुष्य होता है। और विचार करो कि ये भरत चक्रवर्ती के घर उसका यहाँ जन्म होता है, और 8 साल तक ये 100 पुत्र 8 साल तक कुछ बोलता ही नहीं है। तो सभी को लगा कि ये पुत्र मूंगा है, वो बोल नहीं सकता है, ऐसा सबने लगा।
8 साल के बाद ऋषभदेव भगवान के समोसन में जाते हैं, वो भरत चक्रवर्ती के 100 पुत्र, और वहाँ भगवान का उपदेश सुनते हैं। और विचार करो कि नित्य निगोद में से कभी भी इन्हें मंदिर नहीं देखा था, कभी जीनवाणी नहीं देखी थी, कभी भगवान की प्रतिमा नहीं देखी थी, कभी भगवान का उपदेश नहीं सुना था, अनादिकाल से निगोद में ही था। तो कि ऐसा जीव मनुष्य होकर 8 वर्ष की उम्र में भगवान के उपदेश के निमित्त से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद वो मुनि दशा लेते हैं, और मुनि दशा के बाद केवल ज्ञान प्राप्त कर उसी भव में वो मोक्ष दशा की प्राप्ति होती है। तो विचार करो, नित्य निगोद में से निकला हुआ जीव कि पहली बार जिसने प्रतिमा भी नहीं देखी होगी, तो कि ऐसा जीव ये 8 साल की उम्र में सम्यक दर्शन पाकर ये मुनि दशा, केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये पुरुषार्थ का महात्मा ही है। आत्मा का ऐसा पुरुषार्थ है ना, आत्मा का ऐसा महान पुरुषार्थ है कि जे अनादिकाल का मिथ्यात्व है, लेकिन उसको नष्ट करने के लिए अनंत काल की जरूरत नहीं है। अनादिकाल का मिथ्यात्व एक समय में नष्ट हो जाता है, एक समय में। वो इसी पुरुषार्थ की वीर्य गुण की ताकत है। तो हमारा आत्मा का महिमा अगर हमें आए तो रुचि का पोषण और तत्व का घुटन चैतन्य के साथ अगर हो जाए तो आत्मा की प्राप्ति अवश्य होती है। तो ये चैतन्य का घुटन, हमारा आत्मा परमात्मा स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप का विचार करे तो उसका महिमा करे तो उसके सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अनादि के अभ्यास से, अनादिना अभ्यासથી विभावમાં જ प्रेम लाग्यो છે તે छोड़। अनादिकाल से विभाव का रस उसको लगा हुआ है, अनादिकाल से। जीव अनादि का है, अनंत भव किया है हमारा जीव, अनंत भव किया। ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं, ऐसा कोई पुद्गल का परमाणु बाकी नहीं कि जहाँ जन्म मरण किया हो, जिसके का संबंध न रखा हो। अनादिकाल से ये जीव ने 84 लाख योनि में, प्रत्येक योनि में अनंत अनंत बार जन्म मरण किया है। शास्त्र में आता है हमें इतना जन्म मरण किया है कि हमारा मरण के बाद हमारी माता को जो आँख में से जो आंसू निकले, वो आंसू को अगर इकट्ठा करे तो हजारों समुद्र भरा जाए, इतना जन्म मरण हमें किया है। तो अनादिकाल का हमारा आत्मा है। तो अनादिना अभ्यासથી વિભાવમાં જ પ્રેમ લાગ્યો છે તે છોડ। तो हमें अनादिकाल से विभाव का श्रुत परिचित अनुभूत सर्वने काम भोग बंधननी कथा परथी जुदा एकत्वनी उपलब्धि केवल सुलभना। के अनादिकाल से ये विभाव का रस है। तो ये विभाव का रस, ये जो वी कथा है उसमें ही अपना सर्वस्व उसने मना लिया है, लेकिन एकत्व विभक्त आत्मा की बात नहीं सुनी है। समय सार में कुंकुल आचार्य देव बताते हैं 5મી गाथा में कि दर्शाओ एक विभक्त ये आत्मा तना निज विभव थी, दर्शाओ तो कर जो प्रमाण न दोष ग्रह स्खलना यदि। कि मैं आचार्य देव प्रतिज्ञा करते सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए ये समयसार शास्त्र है, और समयसार शास्त्र में आचार्य देव स्वयं 5મી गाथा में प्रतिज्ञा करता है कि मैं आगम, युक्ति, परापर गुरु का उपदेश और स्वानुभव, ये 4 प्रकार से मैं एकत्व विभक्त आत्मा का अनंत गुणों के साथ जिसका एकत्वपना है, और द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म से जिसका विभक्तपना है, तो का ऐसा एकत्व विभक्ति बात मैं बताता हूँ। तो ये भव्य जीव उसको सुनो, सावधान करे उसको सुनो। और 415 नंबर गाथा में आचार्य देव ने समयसार पढ़ने का फल बताया। क्या बताया कि जो समयसार का अभ्यास करता है वो उसको उत्तम सौख्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष पद की प्राप्ति। समयसार का फल आचार्य देव ने स्वयं ये मोक्ष पद की प्राप्ति बताई है। तो अनादिकाल से हमें विभाव का ही रस है, उसमें ही हमारा सर्वस्वपना माना है।
लेकिन एकत्व विभक्त आत्मा की तरफ हमारी दृष्टि कभी भी गई नहीं है। उसकी तरफ देखने की हमें कभी जिज्ञासा नहीं हुई कि ऐसा परमात्मा स्वभाव मेरे आत्मा में भरा पड़ा हुआ है। एक उसका विश्वास जो चाहिए वो विश्वास नहीं है। अगर देखे तो विश्वास आएगा, न आए ऐसा नहीं। हम अगर अपने ज्ञान से वो देख सकते हैं कि आत्मा में ऐसा सामर्थ्य भरा पड़ा हुआ है। तो अनादिकाल से विभाव का हमें प्रेम है, उसका रस है, उसकी रुचि है, उसकी कथा सुनी है, उसमें अपना सर्वस्व परिचय उसमें लगा हुआ है। इसलिए ये विभाव हमें अच्छा लगता है, संसार हमें अच्छा लगता है। वो छोड़ने की हमें इच्छा नहीं होती, वो छोड़ने की इच्छा नहीं होती। अगर इच्छा करे तो भी आत्मसन्मुख पुरुषार्थ आता नहीं। बहुधा ऐसा होता है कि पुरुषार्थ संसार के पीछे मुड़कर आत्मसन्मुख आता नहीं, और कदाचित आ गए तो लंबे समय तक आत्मसन्मुख वो टिकता नहीं है। क्यों? कि विभाव का रस अनादिकाल से पूरा रस भरा पड़ा हुआ है। हम दृष्टांत देखें कि पीछे बच्चे बैठे हैं सब, तो एक रस्सी हो, बड़ा रस्सी हो, तो रस्सी 15 फुट की रस्सी में एक साइड 15 बच्चे को रखे है और दूसरी साइड 2 बच्चे को रखे है खींचने के लिए। रस्सी खींचे, एक साइड 15 बच्चा है, दूसरी साइड 2 बच्चा है, तो दोनों तरफ खींचता है, लेकिन वजन किस तरफ आएगा? 15 जिस तरफ है उसका जोर ज़्यादा आएगा। तो हमारा अनादिकाल से विभाव का रस होने से ये विभाव का संसार का जोर ज़्यादा है। हमें प्रयत्न करता है, हमें भावना है कि आत्मा की प्राप्ति करनी है, उसका प्रयत्न करता है, भावना भी बात है, लेकिन जैसा प्रयत्न करता है वो आता है, फिर तुरंत ये वापस संसार में चला जाता है। क्योंकि हमें अनादिकाल से आत्मा की रुचि, आत्मा का रस, उसका ही प्रेम अनादिकाल से है। इसलिए ये पुरुषार्थ आत्मसन्मुख लाने में हमें बहुत ही दिक्कत होती है। तो यहाँ क्या होता है कि जिन्हें आत्मा पोसाय છે તેને બીજું પોસાતું નથી અને તેનાથી આત્મા અપ્રાપ્તિય गुप्त રહેતો નથી। जो ये पंच कल्याणक जो अवसर है आज का श्री आदिनाथ दिगंबर जिन भीम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का ये पहला दिन है, और ये पंच कल्याणक का मतलब क्या है? कल्याणक का मतलब ही कल्याणकारी है। कल्याणक का अर्थ ही कल्याणकारी, जो जगत के जीवों के लिए कल्याणकारी होते हैं उसको कल्याणक कहते हैं। वैसे भगवान का पूरा जीवन कल्याणमय होता है। भगवान के कारण अनंत असंख्यात जीवों आत्महित को पामता है। तो भगवान का जीवन पूरा कल्याणकारी होने पर भी भगवान के जीवन के जो 5 प्रसंग है उसको कल्याणक तरीके मनाया जाता है। वो गर्भ, जन्म, तप, केवल ज्ञान और मोक्ष, ये 5 जो प्रसंग है भगवान के जीवन का, उसको हम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मनाए जाते हैं। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का हेतु मात्र पुण्य का उपार्जन तो होता है, लेकिन हमारा आशय ये वितरागता की प्राप्ति हो। भगवान की दीक्षा कल्याणक देख के हमें भी दीक्षा आने का भाव आए। भगवान का केवल ज्ञान होता है तो हमें भी केवल ज्ञान प्राप्त करने की भावना उत्पन्न हो। तो ये पंच कल्याणकता वास्तविक है। तो पुण्य तो होता है, पुण्य तो बहुत ही होता है। पंच कल्याणक में जो जीव दान देते हैं, जो भाग लेते हैं, उसको उत्कृष्ट प्रकार का पुण्य का बंध होता है। लेकिन हमें पुण्य का हेतु नहीं चाहिए, हमें आत्मा की पवित्रता प्राप्त करनी है, वितरागता प्राप्त करनी है। तो भगवान ने जो वितरागता प्राप्त की है वो भगवान के 5 प्रसंग के अनुसार हम भी वो वितरागता की भावना हमें प्रकट हो, उस भावना के कारण ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जाता है। वास्तव में तो देवों द्वारा ही उसका मनाया जाता है, लेकिन मनुष्य वो हमें उसके प्रतीक रूप यहाँ मनाए जाते हैं। वास्तव में भगवान का जो पंच कल्याणक है वो इंद्र और देव ही मनाते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं कि जेने आत्मा पोसाय છે તેને બીજું પોસાતું નથી અને જેનાથી આત્મા અપ્રાપ્ય રહેતો નથી।
जागतो जीव ऊभो छे ते क्या जाए जरूर प्राप्त थाय। जिसको आत्मा चाहिए उसको आत्मा की प्राप्ति अवश्य होती है, अवश्य होती है। जैसी भावना होती है वैसा उसका फल मिलता है। माता जी ने बोल में बताया है कि चैतन्य ने चैतन्य माथी परिणमेली भावना એટલે કે રાગદ્વેષમાંથી નહીં ઉગેલી એવી ભાવના, એ ભાવના અવશ્યપણે સફળ થાય ને થાય જ। જો ભાવના સફળ ન થાય तो 14 ब्रह्मांड ने शून्य थवू पड़े, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अगर चैतन्य की हम भावना भाए और निष्फल जाए वो कभी होता ही नहीं है। क्यों? वो आत्मा का उपादान कारण है। आत्मा का सम्यक दर्शन प्राप्त करना हमारा जो पुरुषार्थ है वो उपादान कारण है। और कार्य की उत्पत्ति उपादान कारण से होती है, निमित्त कारण से नहीं होती है। हमें जो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है वो आत्मा का उपादान कारण है। तो जितना जितना कारण हम देते हैं उतना उतना हमें उसका फल मिलता है, अवश्य मिलता है। और संसार में हम पैसा प्राप्त करने की प्रवृत्ति करें, व्यापार धंधा करें, 12 घंटा काम करें, 18 घंटा काम करें, 20 घंटा काम करें, लेकिन हम प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें, लेकिन पैसा प्राप्त हो या न पण हो, पैसा प्राप्त करने का सिद्धांत नहीं है, नियम नहीं है। क्यों? कि संसार में हमारा जो पुरुषार्थ है वो निमित्त कारण हो जाता है और आत्मा में जो पुरुषार्थ होता है वो उपादान कारण हो जाता है। तो कार्य की उत्पत्ति उपादान कारण से होता है और निमित्त कारण की उसकी समय हाजिर होता है। तो पैसा पुण्य से मिलता है, हम पुरुषार्थ जितना भी चाहे करें, लेकिन हमारा पुण्य जो नहीं है तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। तो ये हमारा निमित्त कारण है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि जागतो जीव ऊभो छे ते क्या जाए जरूर प्राप्त थाय। कि हमारा एकत्व विभक्त जो आत्मा है, उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप जो हमारा आत्मा है, जो जानने वाला है, देखने वाला है, ऐसा चैतन्य पदार्थ जानने वाला आत्मा, उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप आत्मा, तो कि उसका निरंतरपणे हमें उसको जानते ही है। हमारा ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता, हमारा जानपना कभी बंद नहीं होता। भले निगुट का जीव है तो भी उसको अक्षर के अनंत में भाग भी अल्प ज्ञान तो अवश्य होता ही है। तो हमारा जो ज्ञान गुण है वो चैतन्य स्वरूप ज्ञान है, वो हमें दिखाई देता है। ये 16, 17, 18 गाथा में बताया है कि आबाल गोपाल सबको ये अनुभव स्वरूप आत्मा की अनुभूति होती है। अर्थात उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप जो अपना जानने वाला पदार्थ है, अपना जो ज्ञान है वो हमारा उसमें जानने में हम अवश्यपणे आता है। तो ये माता जी ने यहाँ जो बात बताई है कि गुरुदेव का उपदेश को हमें ग्रहण करना चाहिए। हमारा ये मनुष्य भाव मिला है वैसा यथार्थ प्राप्त करना चाहिए और उसके यथार्थता उसमें है कि हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। लेकिन वर्तमान में ये पंचम काल है, उसमें भी हुंडावसरणी काल है, उसी के कारण जीव का विभाव रूप परिणाम, उसकी वैभाविक भावना ज़्यादा होती है। ये तत्वज्ञान तरंगिणी में ऐसा श्लोक आता है कि वर्तमान में बहुधा जीव व्यापार धंधा की प्रवृत्ति में अपना समय प्रसार करता है। वर्तमान में कई जीव ऐसा होता है कि जो अपना समय विषय भोग की प्रवृत्ति में प्रसार करता है। वर्तमान में कितना कोई बहुधा जीव ऐसा होता है जो अपना मान सम्मान पोषने के लिए अपना समय प्रसार करता है, लेकिन आत्महित के कार्य में अपना जो समय प्रसार करता है, ऐसा जीव इस जगत में बहुत ही कम है, बहुत कम है। आत्मा के लिए जो समय प्रसार करे तो कि ऐसा जीव इस जगत में बहुत कम है। तो हमें हमारा जीवन आत्मामय बनाना है, हमें आत्मा की प्राप्ति करना है। ये पंच कल्याणक महोत्सव है वो हमारी आत्मा की जागृति के लिए है। हमारी आत्मा हमें प्राप्त करना, हमारी भावना उत्पन्न हुए उसी के लिए है। हमें मनुष्यपना मिला तो उसका फल ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति है, वो उसका फल है। ये पुण्य कमाना उसका फल नहीं है। ये पद्मनंदी पंचविंशति में ऐसा श्लोक आता है कि कोई मनुष्य रास्ते में निकलता जाता हुआ था और गर्मी
अग्नि गर्मी की सीजन थी, बहुत गर्मी थी और भूख प्यास भी उसको बहुत लगी थी, लेकिन रास्ते में कोई वृक्ष दिखाई नहीं देता था। वो चलता था, चलता रहा, लेकिन भूख भी इतनी लगी, ऊपर ताप है, इतना अग्नि, शरीर में से पसीना निकल रहा है, इतनी उष्णता है, कोई वृक्ष उसे दिखाई नहीं देता, कोई खाने के लिए कोई वस्तु नहीं मिलती। वो चलता ही रहता है। लेकिन चलने के बाद, आगे निकलने के बाद बहुत बड़ा वृक्ष उसको मिलता है, पूरे घटादार वृक्ष जो उसको देखता है, वहाँ जाता है और वृक्ष के ऊपर उत्तम प्रकार का फल उसमें लगा हुआ था कि जो अपने हाथ से वो लेकर खा सके। लेकिन वो मुसाफिर ने क्या किया, वो वृक्ष के पास जाता है, जाकर वहाँ बैठ गया कि भाई ठंडी है, वृक्ष के छाया है, ठंडी है, तो बस अच्छा हुआ। ये उसको अच्छा लगा कि भाई हमें ये वृक्ष की जो ठंडी है, उसका जो छाया है, ठंडक है, वो हमें प्राप्त हुआ, उससे आनंदित होता है। लेकिन उसके ऊपर जो उत्तम प्रकार का फल है वो प्राप्त करने का, वो खाने का उसने प्रयत्न नहीं किया, मात्र छाया से ही संतुष्ट हो गया कि वृक्ष का छाया मिला, बस इतना कम, बस इतना हो गया। तो हमें पुण्य के उदय से पैसा, कुटुंब, परिवार, निरोगी शरीर, मान सम्मान, सत्ता पुण्य के उदय से मिलता है, ये मनुष्य बहु मिलता है, लेकिन हम संतुष्ट हो जाते हैं, बस इतना हमें मिला, बस बहुत हुआ। लेकिन हमारा मनुष्य बहु का कर्तव्य सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, वो हमारा कर्तव्य है, वो हमारा जीवन का साफल्यपना है, वो हमें प्राप्त करना है। उसी की तरफ हमारा लक्ष्य नहीं है, मात्र पुण्य के उदय के भोगने में ही हमारा समय पसार होता है। तो यहाँ माता जी का जो बोल है, वो आत्मा की जो रुचि है उसको बढ़ाने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने जो मार्ग बताया है, वो ऐसा भव्य मार्ग जो पुण्यशाली जीव होता है, साथी से ही पुण्यशाली जीव होता है, उसको ऐसा ये मार्ग मिलता है। 8 अरब की 800 करोड़ की वस्ती है, गुरुदेव को मानने वाला कितना होगा, विचार करो, बहुत कम है। 25-50 हज़ार लोग मांग होगा। क्यों? दूसरा क्यों नहीं मानते? दूसरे को जैन धर्म क्यों नहीं मिला, अन्य धर्म में क्यों है? उसका पुण्य नहीं है ऐसा, उसने ऐसा पुण्य नहीं किया है कि उसको सच्चा धर्म मिले, उसको गुरुदेव मिले। वो पुण्य का ऐसा उसके पास पुण्य नहीं है। हमारा पुण्य है, हम पुण्य करके आए तो हमें जैन धर्म मिला, गुरुदेव मिला, माताजी मिला, वो हमारा पुण्य का फल है। तो उसका हम यथार्थ उसका हम उपयोग करें आत्महित के लिए, तो अवश्यपणे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। परम कृपाळु कहान गुरुदेवनो धन्य अवतार प्रसन्न मूर्ति भगवती मातनो जिनवाणी मातनो जी।